Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, myself your computer and GK teachers from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So students, from few days we are doing the revision on chapter 7, working in MS Word. Okay. So students, today we are going to do some topic revision. Before that I will tell you, we have already revised the topics, that is Word 2016 Windows, typing text in a document, editing text, then inserting text, copying text, moving text, deleting text. So we have all more operations on a document. So we have already studied the revision on these topics. Today I am going to explain you the topic, that is undo and redo command. Undo and redo command. So today we will study about the undo and redo command. Okay. So undo and redo command. See here, what is undo and redo command? The undo command is used to reverse the effects of the last command. For example, you increases the font size of a word, but right after doing it, you found the previous font size was perfect. Therefore, you want to go back to the previous size. In this situation, use the undo command. To use the undo command, see here, what is here? Suppose we have in undo command, we can use the undo command to reverse the effect of the last command. For example, suppose when we are working, we have increased the font size of a word. हमने कुछ word टाइप किया, हम उसका क्या चाहते हैं, हम उस word का font size जो थोड़ा बड़ा करना चाहते थे. Suppose we want to, तो हमने उस font size के size को थोड़ा सा बड़ा किया. ओके. अगेन वी फील डैट कि हमें जो पहले जो साइज था हमारे वर्ड्स का वो परफेक्ट था. हाँ, वो साइज जो है परफेक्ट था, तो इसलिए हमें पहले वाले साइज ही ठीक है. जो साइज हमने अभी फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज किया है वो हमें नहीं चाहिए. तो फॉर ऑन दैट कंडीशन वी यूज़ द undo कमांड. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द undo कमांड, ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्ड है जिसका फॉन्ट साइज हमने बड़ा किया था, इंक्रीज किया था, वो अपने सेम पोजीशन पे, पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा. ओके. सो सी हियर आई विल शो यू. For using the undo command, we have to follow some steps. See here, click on the undo button present on the quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार में हम undo बटन जो है प्रेजेंट मिलेगा हमें, वहाँ पर हमें क्लिक करना है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ undo कमांड. दिस इज द सिंबल ऑफ undo कमांड. सो हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और वहाँ पर जाके undo कमांड पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हमने जो भी फॉन्ट साइज बढ़ा के रखी है वो फॉन्ट साइज जो है हमारा क्या हो जाएगा, वापस पहले जैसे जिस फर्स्ट कंडीशन में जिस पे था उसी पर आ जाएगा. और प्रेस Ctrl+Z की कॉम्बिनेशन, या फिर हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं. देयर इज ए कॉम्बिनेशन की, डेट इज undo बटन का जो कॉम्बिनेशन की है कीबोर्ड पे उसका वो है Ctrl+Z. Ctrl+Z इज अ कॉम्बिनेशन की. ओके. सो कम टू द नेक्स्ट, डेट इज redo command. That is what? Redo command. So redo command is, in redo command we do, see here, redo command is, so students see here some text are typed. Okay, we have selected the word fat. Okay, so selected and we have deleted this word. Okay, see in B figure, when we deleted these selected words, the deleted text disappear from the screen. तो वो selected word जो है आपका स्क्रीन से डिसअपियर हो गया. मीन्स हमने डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके, तो अब यू कैन एबल टू सी इन द बिग ऑप्शन. तो क्या जिस वर्ड को हमने सेलेक्ट करके डिलीट किया है, क्या वो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, वी कांट एबल टू सी दिस वर्ड्स. ओके. आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट, दैट इज I will show you the changes after explanation of redo command. See redo command. Okay, in redo command is used to reverse the undo action.
रीडू कमांड क्या करता है, जो अंडू एक्शन हमने जो अंडू कमांड सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल you deleted a block of text from the documents and then used the undo command. The deleted text appears at its original place, but if you do not find it suitable now, instead of deleting the text, use the redo command. Okay, use the redo command. It will be reverse the undo command. For example, I will show you. See here, suppose we have selected this word. Okay, we have selected this word. Okay, and we have deleted it. When we deleted it must be disappear here from the screen. जब हमने एक वर्ड को सेलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे वो डिसअपियर हो गया, वहाँ क्या हो गया, स्क्रीन पर से डिसअपियर हो गया, नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि हमें वो वर्ड चाहिए, फिर हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि हमें वो वर्ड चाहिए। अगेन यू वॉन्ट टू दैट वर्ड, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, सी हियर we will click on the redo command. तो हम जैसे रीडू बटन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रीडू बटन, हम जैसे रीडू बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो डिलीट किया हुआ वर्ड था वो वापस स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। कैन यू एबल टू सी हियर? यस, this means it is the reverse action of undo command. Redo command is used to reverse the action of undo command. Means undo command से जो हमने किया था, हमने वर्ड को सेलेक्ट किया और डिलीट किया। ओके, वी हैव सेलेक्ट करके रखा था और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब हमने अंडू कमांड पे क्लिक किया तो हमारा जो वर्ड है वो वापस फिर से यहाँ पे अपीयर हो गया। अगेन आपको लग रहा है कि नहीं ये सूटेबल नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो वी डू नॉट रिक्वायर टाइम टू टाइम वन बाय वन की सेलेक्ट करो और डिलीट करो। हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम उसको बार बार सेलेक्ट करें और डिलीट करें। सपोज़ हमने एक बार इसको डिलीट किया, सेलेक्ट करके डिलीट किया और हमें ऐसा ओके फिर हमें लगा कि नहीं हमें ये वर्ड चाहिए अच्छा लग रहा है, ओके वी नीड दिस वर्ड, तो अगेन आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल क्लिक ऑन द अंडू कमांड। जैसे ही हम अंडू कमांड पे क्लिक करेंगे तो डिलीटेड टेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। जैसे ही हम अंडू कमांड पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल अंडू द लास्ट सेक्शन द डिलीटेड टेक्स्ट रीअपीयर्स ऑन द स्क्रीन। अंडू कमांड पे क्लिक करते ही हमने जिस वर्ड को डिलीट किया था वो जो वर्ड है वो आपका वापस स्क्रीन पे रीअपीयर हो जाएगा। फिर अगेन यू आर फीलिंग दैट नहीं इट्स नॉट सूटेबल, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा है दिस वर्ड, मुझे सिर्फ सेंटेंस चाहिए, तो अगेन आपको वापस उसको डिसेलेक्ट करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर डैट वी यूज़ द रीडू द अंडू एक्शन। जो हमने जो अंडू करके वापस लाया था उसको आप वापस रीडू पे क्लिक कर देंगे। ओके, वी विल क्लिक ऑन द रीडू बटन जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पे प्रेजेंट है। ओके, या फिर सपोज यू यूज़ द कीबोर्ड, वी कैन यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+Y। रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y। ओके, Ctrl+Y इज द शॉर्टकट ऑफ रीडू कमांड। ओके, Ctrl+Y इज द शॉर्टकट ऑफ redo command. This is the shortcut key combination of redo command. When we will click on the redo button, the deleted text disappear from the screen. अगेन जो यहाँ पे हमने अंडू करके वापस लाया था, जैसे ही हम रीडू करेंगे वैसे ही वापस आपका यहाँ पे जो रीअपीयर हुआ था वो आपका डिसअपीयर हो जाएगा। सो दिस इज द action of the undo and redo command. This is the actions of the undo and redo command. Undo the last action and redo the undo action. Okay, redo reverse the action of the undo command. Okay, so by this we have done what is redo and what is undo. Now come to the next one, that is here in InfoFox it is given the text that is copied or deleted gets automatically stored in the Windows temporary storage area called clipboard. जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं या फिर डिलीट करते हैं वो सारे वर्ड्स, वो सारे टेक्स्ट जो है ना बेटा
सारे टेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली जो है विंडो टेम्पररी स्टोरेज एरिया में जो कि जाकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाता है। दैट्स वाई एंड इट इज़ कॉल्ड क्लिपबोर्ड, एंड इट इज़ कॉल्ड clipboard. So here undo, redo, copy, cut, paste and delete actions are possible only because of the clipboard features. केवल क्लिपबोर्ड फीचर्स की मदद से के में ही पॉसिबल होता है कि हम वहाँ पे अंडू, रीडू या कॉपी, कट, पेस्ट या फिर डिलीट एक्शन का यूज़ कर सकें। ऑल दिस आर अवेलेबल ऑन द ऑल दिस आर पॉसिबल ओनली ऑन clipboard features. Now come to the next topic, that is printing a document. That is what? Printing a document. See here, in printing a document, the printer taken up on a piece of paper is called hard copy. जो भी डॉक्यूमेंट जो हमने कंप्यूटर में बनाए हैं, जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं, सेव करके रखा है, जब हम उस अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट आउट निकालते हैं, जब तक वो स्क्रीन पे रहता है वो एक सॉफ्ट कॉपी होता है। जब तक वो हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन पे रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में जो हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स, वो क्या है, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी है। और जब हम उस डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालते हैं, वी आर टेकिंग द प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। तब वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो क्या बन जाती है, जब वो पेपर पे प्रिंट आउट होके आती है तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। सो इसी ईयर टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर जाके क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रिंट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देन थर्ड वन इज द प्रिंट स्क्रीन अपीयर। तो वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन अपीयर होगा। सी आई विल शो यू, वी विल, वहाँ पर एक प्रिंट स्क्रीन अपीयर होगा। सी हियर, दिस इज द प्रिंट स्क्रीन, दिस प्रिंट स्क्रीन विल बी अपीयर। ओके, कैन यू एबल टू सी, गुड, सी हियर। तो वहाँ पे एक प्रिंट स्क्रीन आपका क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। यू कैन सी द प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन ऑन द राइट साइड। आप राइट साइड में देखेंगे कि वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन शो दिखा रहा है। राइट साइड में आपको शो कर रहा है प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन। सी हियर, this is the print preview screens. Okay, then in the last drop down list you can define the number of document pages. यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि हमें कितने पेजेस चाहिए, तो यहाँ पे हम कितनी कॉपीज चाहिए वो टाइप करेंगे। ओके, वी कैन टाइप हियर द नंबर ऑफ पेजेस, हाउ मच वी वांट। सी हियर, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें कितनी कॉपीज़ चाहिए, हाउ मच कॉपीज़ वी वांट, वो नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। जितनी 1 2 3 4 5 हाउ मच कॉपीज़ वी वांट, हाउ मच प्रिंट आउट कॉपीज़ वी वांट ऑफ टू आवर डॉक्यूमेंट्स, वी कैन बी पुट द नंबर हियर। आफ्टर दैट देन व्हाट यू विल डू, in the last drop down list you can define the numbers of document pages to be print per sheet. By default one page per sheet option is selected. वहाँ पे जब भी हमारे सामने जब भी प्रिंट स्क्रीन अपीयर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 कॉपी हमेशा टाइप रहेगा। उसके बाद हमें कितना चाहिए, भी अभी हमें 1 चाहिए तो हम उसे लेट इट बी वैसे ही रहने देंगे। बट अगर हमें 1 कॉपी से ज़्यादा कॉपीज चाहिए सो वी विल टाइप द नंबर हाउ मच वी वांट, सपोज 1 2 3 4 5 वट एवर। वंस द सेटिंग इज़ फाइनल, और एक बार जब सेटिंग्स फाइनल्स हो जाएगा देन वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कॉपीज डालने के बाद हम जो है प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे बेटा, प्रिंट बटन पे। सी हियर, यू विल सी एबल टू सी हियर, वी विल क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। जैसे ही हम प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे, सी दिस इज द प्रिंट बटन, हम तुरंत किस पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बटन पे। मेक श्योर द सिलेक्टेड प्रिंटर इज स्विच्ड ऑन। प्रिंट बटन पे क्लिक करते वक्त ये ध्यान देखना है कि हमने प्रिंटर का स्विच्ड ऑन करके रखा है कि नहीं। प्रिंटर का स्विच ऑन होना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑन द जो, और वो कौन सा प्रिंटर, जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है।
हमारे प्रिंट जो हमारे कंप्यूटर से जब प्रिंटर अटैच है, तो whenever you are taking the printout of a copy or a document, first check it out that your printer is switched on or not, which is attached to the computer. After that you can automatically your printer will give the printout of that much copy, how much you numbers you have filled. हमने जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज वहाँ पे फीड किया है, उतने कॉपीज की प्रिंट आउट हमें प्रिंटर निकाल कर दे देगा. सो दिस इज द स्टेप टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज exiting words. That is what? Exiting words. In exiting word means closing the word application. Exiting word means closing the word application. So in this what we have to do, see here, click on the close button. Okay, exiting words means क्लोजिंग द वर्ड एप्लीकेशन. एग्जिटिंग वर्ड का मतलब होता है कि हम जो वर्ड एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, अब हमें उसे क्लोज करना है, हमें उस वर्ड एप्लीकेशन से एग्जिट करना है. तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट सी स्टेप्स. क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार. हमारे टाइटल बार के कॉर्नर पे एक, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज बटन. हम इस पे हम इस सिंबल जो दिख रहा है, ये हमारा क्लोज बटन का सिंबल है. हम इस पर क्लिक करेंगे. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार, तो हमारा जो क्या होगा, एंड देन क्लिक ऑन, तो हमारा क्या होगा, वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा. हमारा वर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. या फिर और वी हैव द सेकेंड मेथड, दैट इज क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. या फिर हम क्या करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे और वहाँ से क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. और जैसे आप क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो भी हमारा वर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. हम वर्ड से एग्जिट हो जाएंगे. वी विल गेट एग्जिट फ्रॉम द word. We will get exit from the word. Okay, now come to the next, that is, see, I will tell you. Next is, there is some shortcut keys are given here. Press Ctrl plus P की कॉम्बिनेशन टू डायरेक्टली ओपन द प्रिंट स्क्रीन. हम प्रिंट स्क्रीन को शॉर्टकट की से Ctrl plus P शॉर्टकट की प्रेस करके डायरेक्टली भी प्रिंट स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज प्रेस Alt plus F4 की कॉम्बिनेशन टू एग्जिट वर्ड एप्लीकेशन. अगर हमें कीबोर्ड से अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट दिस टू मेथड्स वी कैन यूज Alt plus F4 की कॉम्बिनेशन टू एग्जिट वर्ड एप्लीकेशन. मीन्स हम क्लोज बटन को क्लोज करने के बजाय कीबोर्ड से Alt plus F4 की कॉम्बिनेशन अगर प्रेस करेंगे तो भी हम अपने वर्ड एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7 explanation. Just we will go through. Here is some fill in the blank. See here, fill in the blank. Dash command reverse the effect of the last command. So which command reverse the effects of the last command? Yes, undo command. Which command? Undo command. So spelling is UNDO, undo command. Then come to the next second one. Erasing anything in a computer document is called deleting. कंप्यूटर डॉक्यूमेंट से हम कुछ भी अगर इरेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीटिंग. व्हाट वी से, डिलीटिंग. स्पेलिंग इज DELETING, डिलीटिंग. Come to the third one. The redo button is present on the quick access toolbar. redo button जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार. स्पेलिंग इज QUICK, क्विक ACCESS. Okay, quick access toolbar. So student, by this we have completed the explanation of chapter 7. In next video I will send you the exercise, explanation of book exercise and question answer. So please go through on it, and those who have not completed their books and copies, please complete it. We will meet in the next video with the exercise.